Hello, aspirants. My name is Karamyoga Divakar Bothra, and I warmly welcome you all in the series Sociology in 10 Minutes. Episode number 74. Yes, it's almost 75 episodes where we have covered every subtopic of paper 1. And maybe in another 10-15 episodes, we'll cover the entire paper 1, which would be freely available to all of you already in the playlist given, so that those people who are not able to afford can cover the entire concepts, can get the structures and develop the content on the basis of the notes which they are referring. आज का टॉपिक है जॉइंट फैमिली। आपको पता है लास्ट टाइम हमने फैमिली के चैप्टर से स्टार्ट किया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखी थी प्रीवियस एपिसोड नंबर 73 में। टुडे विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। इसके आगे वाले एपिसोड के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं द डिबेट ऑफ जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। But today let's first develop an understanding of joint family system. Not only this particular topic is important with respect to sociology, but at the same time Indian society, paper 1, this plays a very crucial role. There are questions often touching this particular aspect of joint family systems. So let's first see what exactly is the meaning of a joint family system. There are multiple definitions which are given. There is no common understanding which have yet been arrived, but there are certain characteristics which have been commonly understood or has to be pertinently present in the notion of joint family system. तो अगर किसी साफ बोलूं तो अगर किसी फैमिली को जॉइंट फैमिली बोलना है तो उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एच.एम. कपाड़िया साहब का ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। कपाड़िया साहब बोलते हैं जॉइंट फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन हैविंग common residence, worshipping common ancestor, food cooked in common hearth or a kitchen, and accepting the domination of karta. So therefore joint family is a family which consists of 3 or more generation. If I add Iravate Karve with Kapadia, the definition of the meaning of that particular institution of joint family becomes much more complete. Joint family is an institution which consists of 3 or more generations who stays together in a common residence, takes up common occupations, worships common ancestor, cooks the food in a common kitchen, and accepts the domination of the karta. So if any day you are asked discuss the meaning of joint family system, combine Iravati Karve and come with H.M. Kapadia, and you'll get a better notion, more clarity. And if the best thing about this is if you just know this particular definition here, and suppose if a question appears in UPSC, civil services, sociology, mains examination, paper 1 or paper 2, that discuss the changes which have taken place in the joint family system. Those changes can be very easily understood on the basis of the changes which have taken place in the characteristics of joint family system. So just knowing the characteristics of joint family system in itself is sufficient in order to largely write any answer on any topic which touches the aspects of joint family systems. अब sociology के अंदर paper 1 के अंदर काफी कुछ debates रही है, but before getting into those debates, let's first understand what are the features. A joint family system is considered as an authoritative organization. Normally हम देखते हैं कि joint family के अंदर वो कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन वाला concept है, कह दिया ना बस कह दिया. The karta yields the entire power and all the co-partners, or for that matter all the members of the family, largely accepts or yields to the authority of the karta, which is always the eldest male member of the family. Therefore authoritative. Equal treatment of all the members. Equal treatment of all the members here means that all the members of the family would be equally treated. There would be no disparities, distinctions or privileges. Not privileges, discriminations would not be attached here. That अगर कोई छोटा बेटा या मंझला बेटा कम कमा रहा है तो उसके बच्चे किसी दूसरी स्कूल में जाएंगे, नहीं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी बच्चे हैं घर के सब एक ही स्कूल में जाते हैं, या फिर सबके लिए कपड़े या सबके लिए वही चीज आती है, सिमिलैरिटीज रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर इनका पिता पैसा नहीं कमा रहा है तो उनके लिए वो चीज नहीं लाई जाएगी। दैट इक्वल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अमॉन्ग द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स। फर्दर स्टेटस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एज। द स्टेटस इज नॉट डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स. Rather, the status of a joint family system is always derived on the basis of age. Those people who are having the people who are more senior in nature, more elder in nature, they always derive respect. Therefore, young ones always respect their elders. So, status is always derived on the basis of age, irrespective of the money which you have, irrespective of your positions in the society outside the family is. तो for example, अगर छोटा वाला भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और बीच वाला भाई अगर क्लर्क है उसी ऑफिस में,
तो घर के बाहर शायद छोटे वाले बेटे की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन घर के अंदर वो क्लर्क जो है उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहां पे बड़े भाई का ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करता है. इफ यू गो फर्दर इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, वी आल्सो सी दैट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन where the individual interests are always subordinated to the collective interest. That means the interest of the family is much more considered more important than when compared to the interest of the individuals who are largely present. तो आप क्या करना चाहते हो वो सेकेंडरी मैटर है. फैमिली की कलेक्टिव वैल्यूज को सबसे पहले एम्फसाइज कराया जाता है इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के अंदर. इफ यू गो फर्दर, fraternal relationships are more important than the conjugal relationship. That is, the blood relationship is considered as more important than the marriage relationships which actually exist. So these are some of the characteristics of joint family systems which we often seen that wherever or whichever society the joint family system exists, these are the characteristics which more or less would be present or would be common among all the जॉइंट फैमिली सिस्टम्स. ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे मिलेंगे. अब डिबेट सोशियोलॉजी में ये रही कि जॉइंट फैमिली को दो तरीके से समझा लोगों ने. एक स्ट्रक्चरल तरीके से समझा, कितनी जनरेशन साथ में रहती है, 3, 4 और 7, मेनी टाइम्स इन ट्राइबल सोसाइटी सच अंडरस्टैंडिंग इज अंडरटेकन. एंड सेकंड इज रिलेशनशिप के बेसिस पे, जहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप मेंबर्स के बीच में कैसी है, एज के बेसिस पे रेस्पेक्ट कैसा है, ऑनर कैसा है, स्टेटस कैसा है, इंटरेक्शंस कैसे हैं. तो अब देयर आर टू वेज इन विच जॉइंट फैमिली सिस्टम्स कैन लार्जली बी इवैल्यूएटेड. इफ यू लुक इनटू द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स टुडे, certainly the joint family systems are breaking down with respect to their structures, but that relationship or that emotional bonds between the members, although they have come into different nuclear family systems, is still present. For example, if I take an example of my own family, we earlier used to live in a joint family systems, maybe during my dad's time, but now we often see that the different people are living together in their different houses, maybe in a nuclear family, but yet that jointness which is present among all my bloodline members is severely strong even in contemporary time, despite not living together. Therefore, in India, West के अंदर इसी तरीके से joint family देखी गई, लेकिन इंडिया में इसको एक relationship के लिहाज से भी समझा गया कि joint structures are breaking down, but the jointness is still remaining intact. मैसूर नरसिम्हन श्रीनिवासन. अब एक सोशियोलॉजी में डिबेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के बीच के अंदर. इफ यू लुक इनटू द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, वी ऑफन सी दैट देयर हैज बीन अ डिबेट व्हिच ऑफन डिस्कसेस वेदर द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इन इंडिया आर ऑफन ब्रोकन डाउन एंड हैज गिवन प्लेस टू न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड देयर इज अनदर डिबेट व्हिच टॉक्स अबाउट नो, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैव येट नॉट ब्रोकन डाउन, इट स्टिल एग्जिस्ट, दे आर नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर फैमिली. तो ये बोलते हैं नो, न्यूक्लियर फैमिली रिप्लेस नहीं कर रही है, अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है. ये बोलते हैं नहीं भैया, ये ब्रेकडाउन हो चुका और न्यूक्लियर फैमिली इसे रिप्लेस कर रही है. अब ये माना जाता है कि ये सब कुछ हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के जैसे. क्यों? वेस्ट के अंदर ये देखा गया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, स्कॉलर लाइक विलियम गुडे एंड टालकट पार्सन्स एडवोकेटेड व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन द वेस्टर्न सोसाइटी, उधर मोबिलिटी बढ़ गई लोगों की, वुमेन के लेबर को ज्यादा तवज्जो देने लगे, वैल्यू करने लगे, वुमेन बाहर जाके काम करने लगी, और इंडिविजुअलिज्म रिप्लेस्ड कलेक्टिविज्म. और जब किसी समाज में ये तीन चीजों का डेवलपमेंट होता है तो ये वैल्यूज सीधा सीधा जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अगेंस्ट में खड़ी होती है. तो ये देखा गया वेस्ट के अंदर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंस इट चेंज द नेचर ऑफ सोसाइटी, दीज फीचर्स वर नाउ नॉट कंपैटिबल विद द नोशंस एंड द वैल्यूज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, एंड एज अ रिजल्ट इट वाज फाउंड आउट दैट इन वेस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिप्लेस्ड जॉइंट फैमिली विथ न्यूक्लियर फैमिली. So this was technically a debate present in goddamn West. अब इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहा, और हमें ये लगने लगा कि क्या इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है. अब इंडिया में कुछ स्कॉलर्स थे जो सपोर्ट करते हैं. अक्षय रमनलाल देसाई बोलते हैं हाँ, जॉइंट फैमिली एक फ्यूडलिज्म का पार्ट होती है, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं मिलेगा ये. टालकट पार्सन भी वेस्ट के अंदर यही सपोर्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स. बट रियलिटी में देखा जाए तो इसका एक अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है कि जॉइंट फैमिली हैज नॉट रिड्यूस्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को होने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो चीज मांगता है, वो सारी की सारी चीजें जॉइंट फैमिली सपोर्ट करती है. और अगर जॉइंट फैमिली उस चीज को सपोर्ट करती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्रेक अवे नहीं होगा जॉइंट फैमिली सिस्टम, ज्यादा बेहतर और स्ट्रेंथन हो जाएगा जॉइंट फैमिली सिस्टम. कैसे? इस जॉइंट फैमिली सिस्टम से ये सारी चीजें मिलती है जो सपोर्ट स्ट्रक्चर बन जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का.
So, if a debate ever comes, how to approach that? First, prove that how joint family systems have been threatened by the industrialization, as discussed by scholars such as William Goode and Talcott Parsons, supported by Indian sociologists such as A.R. Desai. But however, we do see in India this debate cannot be precisely universalized. As we see, the joint family systems have acted as a support structure for industrializations, leading to the maintenance and sometimes the domination of joint family systems in the society. For example, joint family on the job training देती है. Joint family के basis पे आपको opportunity मिलती है business को सीखना. जो आप MBA institution में कर रहे हो आप वो joint family से भी सीख सकते हो. Joint family कहीं ना कहीं capital देती है कि जाओ भैया स्टार्टअप स्टार्ट करो, पैसा हम दे रहे हैं, सपोर्ट हम देंगे. टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चों का टेक केयर करती है कि जाओ आप रिस्क लो, आप लड़ाई करो, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, फैमिली की चिंता मत करो. इसके लिए हम सब बैठे हैं ना यहाँ पे. आपको पता है अन्नू कुमारी किस तरीके से यूपीएससी में सोशियोलॉजी से टॉपर बनती है, वन ऑफ दी. और हम देखते हैं कि उनका ऑलरेडी एक बेबी था, एक लड़का था जिसको सपोर्ट किया उनकी फैमिली ने, जिसके कारण उन्हें फ्रीडम मिला कि वो तैयारी कर सके और बेहतर तरीके से. एक्सपर्टाइज आता है कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली में, क्योंकि जब ज्यादा मेंबर रहते हो तो किसी बिजनेस को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हो. आपके आसपास देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में है वो कहीं ना कहीं फैमिली रन एंटरप्राइजेस है. अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है, तो इसके कारण भी अर्बन इंडिया में देखते हैं कि लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं. हम देखते हैं सुधा कपूर की खत्रीज की स्टडी है, गोरे की अग्रवाल्स की दिल्ली की स्टडी है. ये सब बताते हैं कि अर्बनाइजेशन के चक्कर में कुछ लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं. और सोशल कैपिटल इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी. जॉइंट फैमिली के अंदर जब ज्यादा मेंबर होते हैं, 10 मेंबर, 15 मेंबर, कई कई फैमिलीज में 34 36 मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो यहां पे ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सोशल कैपिटल देता है, आपका ज्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ाता है. टेक एन एग्जांपल ऑफ पंजाब, गुजरात, इनके मेंबर्स जो है कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया माइग्रेट कर चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं एंड सेटल हो चुके हैं, सिटीजन्स बन चुके हैं. अब वो लोग कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एक्ट करते हैं कि ठीक है भैया यहां आ जाओ, 20-25 दिन हमारे साथ रहो, 6 महीने रहो, अपना जॉब सेटल करो और फिर जाके आप अपने आप सेटल हो जाओ.